अच्छा, कम नंबर आए होंगे ना, इसीलिए ह्यूमैनिटीज लिया। वेल दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आई गॉट अ 9.4 CGPA in 10th and auntie, yes, I have still taken humanities. नमस्ते टू एवरीबॉडी। आज जैसे कि एवरीबॉडी नो, आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त 2020 और ये हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे है। सो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लेस कॉमन टॉपिक है। कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब बस बच्चा जब 10th से 11th में जाता है तभी थोड़ा डिस्कशन होता है, उसके बाद ना न्यूज़ में ना कोई और इसके बारे में बात करता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट स्ट्रीम्स में बेसिकली कि जब हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो हम एक हियरार्की फॉलो करते हैं। हियरार्की मीन्स टॉप में साइंस, सेकंड में कॉमर्स एंड बिल्कुल जो बच्चे कुचे बच्चे हैं या बिल्कुल लोअर लेवल वाले बच्चे हैं, लोअर आईक्यू वाले बच्चे, वो आर्ट्स वाले। ठीक है, But you know, this is a misconception which we have. We have simply, like, you know, earlier, like the way the caste system was there, the same way people have made the system in studies for these students. If a student is having the science stream, then he is very good. So this kind of discrimination, even the students also start discriminating among themselves. A science student simply just treat the student of the humanities like that he is belonging from some of the category to whom people should not mix and all. People always judge. The society plays a major role in everything, and this criticism has always made the people do something out of themselves, something that they don't want. If a student wants to take humanities, after getting 98%, he or she will still be judged that oh, she's a humanities student, oh, she can't do anything in her life, or she don't has any option. तो आज की इस वीडियो का बनाने का रीज़न यही है कि हमें अगेन हमारी जो मेंटालिटी है वो चेंज करनी है रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग स्ट्रीम्स। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी तीनों स्ट्रीम्स इक्वल हैं, which gives us equal opportunity in our future. Humanities is a difficult task. However, it can be said in a few words that it is an academic discipline which deals with the study of human conditions. लोगों को क्या लगता है आर्ट्स क्या है? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई थॉट कि आर्ट्स में लोग आर्ट्स पढ़ते हैं। There's nothing wrong with taking humanities as your stream. It's not a stream for dumb people. Humanities has a lot of scope and opportunities in future. But it is just a societal mindset that humanities are for students who don't score good. It's like, acha humanities hai, so maybe you didn't score good, you didn't get science. No, I didn't want science and that is why I took humanities. Whenever I mention it to other people, whenever I tell people my marks, I get this asked a lot that why didn't I pick science? It's because there are so many more professions other than just being a doctor or an engineer. I remember this quote from a movie that medicine, engineering are all noble pursuits and are necessary to sustain life. But poetry, romanticism, is that what we stay alive for? And it really touched my heart. Humanities is so much more than people perceive it. We are here to talk about our society, different types of parents, different pressure, different questions जो पूछे जाते हैं। सोचने वाली बात है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं अपने स्ट्रीम को। हमें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। अगर हमारी फैमिली बेसिकली कॉमर्स में काम करती आई है तो हम कॉमर्स प्रेफर करते हैं, या फिर हमसे कोई सीनियर या हमारे भाई बहन साइंस लेके आगे बढ़े हैं तो फिर हम साइंस लेके चलते हैं। इस तरह से अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग थिंकिंग हम अपने सराउंडिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, तब हम ये स्ट्रीम लेते हैं। कुछ बच्चे पीयर प्रेशर की वजह से ये स्ट्रीम लेते हैं। So the great Indian education system ranks arts as for those who are not strong in same subjects.
And that's the mindset of every Indian parent and student, that you are not good enough for science. There's a thing called herd thinking. Herd thinking is basically when you do or believe something because चाचा चाची said so, मम्मी पापा कहते हैं, अंकल आंटी कहते हैं, बुआ फूफा कहते हैं. And what happens? If everyone is taking science and commerce and arts is left out from the schools or the education system, then who will be guiding the different things, right? जो फिलोसॉफी की बातें आ रही हैं, जो कल्चर की बातें आ रही हैं, वो तो साइंस और कॉमर्स में होता नहीं है, तो वो कैसे कहाँ से आएगा? वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है. मैं खुद एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ. बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है हमारी सोसाइटी में अगर कोई इंसान या कोई बच्चा आर्ट्स ऑप्ट करता है. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है इस मामले में. उन्होंने मुझे कह दिया था कि जो करना है आपको जो परस्यू करना है आगे जाके आप खुद सोचो, आपका वो खुद का डिसीजन होगा. लेकिन हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स के अलावा काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है. उन्होंने आके क्वेश्चन पूछा कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो तुम आर्ट्स क्यों ऑप्ट कर रही हो, तुम साइंस ले सकती हो. नॉन मैथ ले दो, कॉमर्स ले दो, ह्यूमैनिटी को तो वो किसी गिनती में गिनते ही नहीं. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये धारणा गलत है. आप बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करो. आप बच्चे का इंटरेस्ट देखो, आपका बच्चा इंटरेस्ट किस चीज़ में है. I was a science student. Let me tell you that also. I was a science student and I chose arts because I really wanted that. Arts and commerce दोनों ही एक ऐसे अंडररेटेड फील्ड्स बन जाते हैं जिन्हें लोगों को एज एन ऑप्शन चूज करते हैं कि ये तो अलग लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा. एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आगे जाके क्या करोगे आर्ट्स को लेकर, क्या करियर है. Arts is the biggest stream. The wide range of subjects that comes under the umbrella term of humanities range from history, languages, literature, law, philosophy, religion, performing arts, anthropology, communication, sociology, psychology, and many more. Choosing humanities stream after class 10 would enable a student choose a career from range spanning a wide area. You guys are also sure of your goal. No wonder science students and commerce students are given chance to change their streams even after graduation, as some of us don't know what to pursue further. जो लोग 11th-12th में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, एट द एंड वो लोग आर्ट्स में ही शिफ्ट हो जाते हैं. क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बाकी स्ट्रीम्स का है वो बहुत ज़्यादा है. अल्टीमेटली उनको आर्ट्स में ही शिफ्ट होना पड़ता है. तो क्यों ना हम लोग 11th में जो हमारा फाउंडेशन स्टेप होता है उधर से ही आर्ट्स ले लें. क्यों इतना क्रिटिसिज्म है एक सब्जेक्ट को लेके. पढ़ाई करके कुछ बनना मतलब होता है. ये नहीं कि सभी लोग डॉक्टर ही हैं वर्ल्ड में, जब पूरे साइंटिस्ट ही भरे हुए हैं, सभी तरह के लोग हैं. मैं सबको एक सजेशन देना चाहती हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करी. हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, हमारे पास मेडिकल के लिए इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, कॉमर्स के लिए सीए के लिए इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है. कभी किसी ने सोचा है कि आर्ट्स वाले बच्चे कहाँ जाएं कोचिंग के लिए? हाँ, आईएएस आईपीएस वाली कोचिंग है, लेकिन उसके अलावा भी तो इंसान ने सोच के रखा होता है ना कुछ, कि कुछ करना है आगे जाके. अब आर्ट्स लेके भी तुझे ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो कुछ नहीं हो सकता बेटा तेरा. It's not about taking arts as a subject or a science as a subject. Every stream is important at their places, and for the society, every 3 of the section of the educations are important, equally important. तो अगर आप लोग अभी उनको उनकी मर्जी का सब्जेक्ट नहीं लेने देते ना, तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है दिमाग में. हम लोगों ने मूवीज़ देखी हैं 3 इडियट्स जैसी, उसमें भी हम लोग
चीख चीख के वो लोग यही बताना चाह रहे थे कि जो आपका बच्चा करना चाहता है प्लीज़ उसे करने दो। ऐसे सुसाइड केसेस वगैरह इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्लीज़ उनको इतना प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करा। मैंने बच्चों को बोला आपका जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो, आप कुछ बन के दिखाओ। कि हम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बन के ही आप माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सभी तरह की वर्ड में सभी काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे पेरेंट्स की तरह थोड़े सपोर्टिव हो जाओ आर्ट्स को लेकर। यार हमारा भी फ्यूचर है, ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा भी फ्यूचर है। आपका बच्चा अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करेगा आर्ट्स लेके। उसको अगर मन है करने का तो प्लीज़ उसको करने। मतलब है कि बीइंग अ पेरेंट यू शुड टॉक टू योर चाइल्ड कि वो किस में खुश है। अगर उसको साइंस लेनी है गो फॉर साइंस, अगर उसको कॉमर्स लेनी है गो फॉर कॉमर्स, अगर उसको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स अच्छी लगती है, अगर उसको आर्ट्स परस्यू करनी है तो प्लीज डोंट जज इट। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेके वो भूखा मर जाएगा या उसको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हर स्ट्रीम के अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने करियर ऑप्शंस हैं। सो आई वुड लाइक टू मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करूंगी कि प्लीज एक पहले ही पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, एक और प्रेशर उन पे ना डालें। और जो आजकल सोसाइटी में इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, अपने बच्चे को उसकी तरफ खुद ना धकेलें और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।